when India is playing some others in international game, then a country should come first, not the curators' personal ethics. To all of us, country comes first. We are like a soldier. Soldier for India. If India is playing, Not for other country. We are soldier for India. Country comes first. So we should not be that rigid that we will not help Indian team. okay, in making pitch. Because every country is helping their home side. मतलब क्रिकेट के नियम एक तरफ और कप्तान क्यूरेटर एक तरफ। आशीष भौमिक ने साफ कहा कि जब भारत की बारी आती है तो सारी नैतिकता एक किनारे रख दी जानी चाहिए। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर का बड़ा खुलासा। जब भारत खेल रहा हो तो क्यूरेटर की नैतिकता का कोई मतलब नहीं। भारत खेल रहा हो तो क्यूरेटर को सिपाही की तरह मदद करनी चाहिए। आशीष भौमिक ने बिना किसी हिचक के हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया कि घरेलू मुकाबलों और आईपीएल में स्थानीय कप्तानों की चलती है और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में टीम इंडिया के कप्तान को उसकी पसंदीदा पिच दी जाती है। What is in domestic cricket, as I told you, most of the captains are trying to pressurize the curator. If you fail to take the pressure, you are gone. What about international cricket and IPL? International cricket, I told you, international cricket for when India is playing, we the ground committee also always think which is better for our country. Country comes first there. But IPL, we look at preparing good pitch where a batsman can hit the ball easily. तो क्या ये भारत में होने वाले हर मुकाबले का सच है? देश का एक दिग्गज क्यूरेटर कह रहा है कि हाँ, यही सच है। और इस देश के 100 करोड़ दर्शकों को तो पता ही नहीं कि जो दिखता है उससे ज्यादा छिपा रहता है। जिस पिच पर खेलकर खिलाड़ी चौके छक्के और सैकड़े जड़ते हैं, उन पिचों पर पसंद की अदृश्य कालीन बिछी होती है। Entertaining pitch. But when India is playing, our country comes first. So there is no sporting And cricket. for this also domestic cricket also, we remain strict not to give any favorable pitch to home team because this is our duty to help Indian cricket upgrade its standard. So if we fail under pressure, then we are ultimately failing to develop our country's playing standard. And you think there are curators who are succumbing to pressure? All the curators are coming to pressure and we have to resist it for the good. Preparing a favorable pitch for India when India is playing other countries. This is a duty as a soldier of your nation. इसके बाद तो वो हुआ जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जिस दिन आशीष भौमिक से हमारी मुलाकात हुई थी, उसके अगले दिन रांची में चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स का मुकाबला था। उसी की पिच बनाने के सिलसिले में आशीष भौमिक रांची में थे। हमने आशीष भौमिक से पूछा, क्या पिच की जानकारी मिल सकती है? इस सवाल के जवाब में ईस्ट जोन के मुख्य क्यूरेटर ने जो कहा, उसे सुनकर आपका मन उनकी ईमानदारी के कसीदे पढ़ने का करेगा। Sir, are you people allowed to divulge the pitch information to the players? मैच शुरू होने से पहले? No. We don't give any information about the pitch. Okay. To any, neither to the captain, neither to the coaches. No one. From both the side. No one. Okay. Do they approaches you? मैच शुरू होने से पहले कि सर प्लीज बता दीजिए कैसा विकेट होगा? I'm asking about the coach, friendly, captain. they're coming asking friendly what can happen.
what should we do? Bet fast, bowl fast. This is a common questions. There is no harm. तो उसमें क्यूरेटर क्या करते हैं सर, बता देते हैं? Normally not, because this is unethical to guide the players. हमें ये जानकर खुशी हुई कि क्रिकेट में कहीं थोड़ी सी ईमानदारी बची हुई है। किसी भी कीमत पर पिच की जानकारी देने को तैयार नहीं थे आशीष भौमिक। वे नैतिकता की ऊंची ऊंची दुहाई दे रहे थे। So curators are not allowed to give information No, this is unethical. This is unethical. to anyone, neither to the media nor to the players. Anyone. We don't give any information to anyone. हम अपनी बातचीत खत्म करने वाले थे। हमें यकीन हो चला था कि आशीष भौमिक बीसीसीआई के नियमों और अपनी नैतिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या, अगले ही पल में ईस्ट जोन का सबसे बड़ा क्यूरेटर सारे नियमों को दरकिनार कर दनादन अगले दिन होने वाले मैच की जानकारी दे रहा था। हम हैरान थे कि क्या ये वही आशीष भौमिक हैं जो कुछ मिनट पहले कह रहे थे कि किसी को भी मैच से पहले उसकी जानकारी देना अनैतिक है और वो ये हरगिज नहीं करेंगे। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। आशीष भौमिक ने आईपीएल मैच से एक दिन पहले दिया पिच का ब्यौरा। So tomorrow is the last match of the IPL 2014 in Ranchi. There is 2 matches tomorrow. That's why I am going back. Okay. One is in Calcutta, one is Ranchi. Both under my control. So what type of a pitch you have prepared for tomorrow's match sir, in Ranchi in the IPL 2014? Ranchi, standard one. Okay. It will be a batting track. We can tell tomorrow only. We are trying to prepare a batting track, but the kind of soil we are having in Ranchi and the kind of heat we are going through right now, this is very difficult to prepare real good batting track at this time of the year. ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। आशीष भौमिक ने आईपीएल मैच से पहले बताया बैटिंग ट्रैक होगी विकेट। आशीष भौमिक थोड़ी देर पहले जिन नियमों की दुहाई दे रहे थे उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 22 मई 2014 के मैच के बारे में वे 21 मई को बता रहे थे कि सवेरे पिच में और क्या-क्या करने वाले हैं। So are you leaving the grass on the Ranchi pitch sir for the tomorrow's match? There is not much grass because after rolling the grass is going off. So you will cut more grass for tomorrow's match? No, there is no grass. So no grass at all? Very minimum grass, and I think there is nothing to be cut more. This will not come into the plate. And you will going to water this pitch? What? Definitely. This is as we will do. This is his sole jurisdiction. ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। 22 मई के आईपीएल मैच के पिच की जानकारी 21 मई को ही दी। क्यूरेटर ने बताया पिच को तेज बनाने के लिए सवेरे क्या-क्या करेंगे। आशीष भौमिक ने कहा सवेरे पिच पर पानी डालेंगे और घास हटाएंगे। इसके बाद तो आशीष भौमिक जैसे बदल गए थे। जिस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अगले दिन चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स का मैच होना था, उसी बिरसा मुंडा स्टेडियम के एक कमरे में एक दिन पहले हमें पिच की एक-एक बारीक जानकारी दे रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, आशीष भौमिक ने रनों के अनुमान को लेकर भी हमसे अपने दिल की बात नहीं छिपाई। So it will be a high scoring game tomorrow's match. 150 plus 160. 150 plus, yeah. This is standard. High scoring until 170, 180. 150, below 150 means 300 in both innings. Then, okay, we used to think about it. Again, sometimes it happens that 140 pitch is a very good pitch.
ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। 22 मई के आईपीएल मैच में क्यूरेटर ने लगभग 180 रन का अनुमान लगाया, जबकि बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक कोई भी क्यूरेटर होने वाले मैच के बारे में खिलाड़ी, कोच या मैनेजर के सामने तक रनों का अंदाजा नहीं लगा सकता। हम तो बाहरी थे। आशीष भौमिक का अनुमान सही निकला। चेन्नई सुपर किंग्स ने 22 मई को रांची में 185 रन बनाए थे। हैदराबाद सनराइजर्स ने 189 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। हमें अंदाजा नहीं था कि ईस्ट जोन के सबसे बड़े क्यूरेटर के दिल में इतने राज छिपे होंगे, लेकिन बीसीसीआई के डर का डंडा उन्हें हर गलत, अनैतिक और गैर कानूनी काम को मुंह बंद करके चुपचाप करते रहने के लिए मजबूर करता रहता है। आशीष भौमिक ने साफ कहा कि बोर्ड का डर ना होता तो वे बहुत कुछ बोलते। हम लोगों का जो अप्रोच है सर, दैट इज ओके, यू अप्रिशिएट दैट अप्रोच। अगर हम बीसीसीआई में ना होते तो आपको कुछ ज्यादा बोल सकते थे। आई अंडरस्टैंड योर अप्रोच। अगर हम बीसीसीआई का उसमें नहीं होते थे, प्रोविड का जैसे खोल के बोल सकते थे। तो क्या सर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि खुल के बोलना चाहिए? हाँ बासु, वही है 80-80। हाँ सर। हाँ वेटिंग फॉर मी। हाँ सर, ऐसा कुछ है बीसीसीआई में जो आपको लगता है कि नहीं, खुल के बोलना चाहिए? बीसीसीआई के बारे में नहीं। फिर कहाँ के बारे में? जो there is certain hardship for the curators in India. Like? Not all the curators is like Pravir Mukherjee or Ashish Bhomik, who is not working for money. We can live tomorrow because we are not working for benefit. But for the survival of the curators, who has taken this as a job, we should think about them also. ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। बीसीसीआई के डर से जुबान नहीं खोलते पिच क्यूरेटर। ज्यादातर क्यूरेटर फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आशीष भौमिक ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जिसे वे बताना नहीं चाहते, और जिसे बता दें तो क्रिकेट में हंगामा मच जाए। वे बातें क्या हैं? उन तमाम राज को तो आशीष भौमिक ने छिपा लिया, लेकिन नाना करते हुए भी उन्होंने ऐसा बहुत कुछ बता दिया जिसे सुनने के बाद क्रिकेट का चेहरा आपको बहुत बदरंग नजर आने लगेगा। मैंने यहाँ तक इंसिडेंट सुने हैं कि पिच क्यूरेटर्स को कैप्टन, कोचेस की तरफ से धमकाया जाता है फेवर पिच बनाने के लिए। वो जैसे कि प्रवीणता का सामने कोई नहीं आता, मेरे सामने भी कोई नहीं आता, मालूम है। लेकिन ऐसा होता है? होता है। इनको समझाया नहीं जा सकता है। किस टाइप के मैचेस में होता है सर ये धमकाया जाता है? क्लब मैच से शुरू करके सब। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बड़ा खुलासा। क्यूरेटर को कप्तान और कोच धमकी देते हैं। कप्तान और कोच की बात मानना मजबूरी है। आशीष भौमिक ने जो कहा उसे सुनकर हम हैरान थे। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि क्रिकेट में मनमाफिक पिच बनवाने के लिए धमकी दी जाती होगी, और धमकी भी ऐसी जिसे दरकिनार करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। किस टाइप की धमकी होती है सर? करना ही है, मतलब धमकी मतलब आपको करना ही है। नहीं करोगे तो क्या होगा? अरे आपका लोकल सेक्रेटरी अगर बोलेगा कि यू हैव टू डू इट और क्विट, क्या करोगे? ऐसा भी सीन है, निकाल देते नौकरी से? नौकरी तो नहीं होता है, ये तो नौकरी नहीं है। लाइक इफ यू आर हैविंग अ गुड पोजीशन इन योर एसोसिएशन, देन यू आर अ गुड क्यूरेटर। मतलब क्यूरेटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो मेजबान टीम के कोच और कप्तान के मुताबिक बढ़िया मैदान बनाकर दे दे, बिना नियम कानून की परवाह किए हुए।
ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में आशीष भौमिक ने 5 बड़े खुलासे किए हैं। आशीष भौमिक का पहला बड़ा खुलासा, टीमों के कप्तान क्यूरेटर से पिच बदलने के लिए कहते हैं। आशीष भौमिक का दूसरा बड़ा खुलासा, टीमों के कोच कप्तान क्यूरेटर से पिच बदलने के लिए कहते हैं। आशीष भौमिक का तीसरा बड़ा खुलासा, 22 मई के आईपीएल मुकाबले में क्यूरेटर लगाते हैं रनों का अनुमान। आशीष भौमिक का चौथा बड़ा खुलासा, मैच से पहले क्यूरेटर किसी को भी दे देते हैं पिच की जानकारी। आशीष भौमिक का पांचवां बड़ा खुलासा, कप्तान और एसोसिएशन क्यूरेटर को देते हैं निकालने की धमकी। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। और आपने देखा आशीष भौमिक ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर, और आशीष भौमिक ने 2-3 जो बातें की उसमें आईपीएल मैच से पहले उन्होंने पहले माना कि किसी भी मैच के बारे में मैच से पहले पिच की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पूरे मैच की जानकारी अंडरकवर रिपोर्टर्स को दी। आशीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट के बहुत खास प्रेमी हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और साथ ही साथ क्रिकेट पर बहुत बोलते हैं। और साथ ही साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं हरपाल सिंह बेदी, क्रिकेट के वरिष्ठ पत्रकार, कम से कम 30 साल से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और शिवेंद्र कुमार सिंह, ये भी क्रिकेट के पत्रकार हैं, खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरपाल सिंह बेदी जी, हमने अभी आशीष भौमिक को देखा जो कि ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर हैं, और उन्होंने कहा कि हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, अगर हम नहीं बदलते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी दी जाती है। क्या कार्रवाई की धमकी दी जाती, क्या कर लेंगे उनको? ये कहना आसान है, क्या कर लेंगे, पता तो चले वो क्या कार्रवाई की, इन्होंने निकाल देंगे। हाँ, निकाल देंगे। तो जो इस तरह बोल सकते हो अखबार में क्यों नहीं कह सकता कि साहब हमें ये कह रहे हैं हम निकाल देंगे, या अपने बोर्ड को या अपने एसोसिएशन को क्यों नहीं कहते कि हमें निकालने की धमकी दे रहे हैं? और किन किन प्लेयरों ने कहा है? ये जो आज आपको इन्होंने कहा है, कल ये बिल्कुल मुकर जाएंगे कि हमने तो कहा ही नहीं, या जो कहा हमने प्लेयरों को कहा नहीं। देखिए ये तो एक आम बात है, प्लेयर जो है हमारे, जो जैसे भी प्लेयर आपने कहा कि वो ऐसी अपनी विकेट अपनी पसंद की चाहते हैं, वो तो ये हर जगह होता है मेरा ख्याल है। मगर अगर इन्होंने इतना एक मॉरल स्टैंड लिया है, ईश्वर सेट कि नहीं मैं तो कंप्लेंट करूंगा, या इन्होंने आपको ये बताया था कि अगर हमने कंप्लेंट की है और बोर्ड ने, एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया, एसोसिएशन ने भी कहा, इन्होंने एसोसिएशन को कहा ही नहीं, इसका मतलब ये भी उन चीज़ों से मानने को तैयार हैं जो प्लेयर और या मैनेजर कहता है या कोच कहता है उससे। और कई बार ये अब देखा, आप वर्ड क्यूरेटर कहने शुरू करिए, बड़ा अच्छा इज्जत वाला है। पहले तो ग्राउंडमैन कहते थे और ग्राउंडमैन को कोई मानता ही नहीं था, हैं माली भी कहते थे ग्राउंड। अब तो क्योंकि अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने क्या क्यूरेटर है और टाई वाई पहन के अब अंग्रेजी बोलनी शुरू होगी। वरना जैसे मैनेजर या कोई भी अच्छा बॉलर या कोई भी नामी ग्रामी प्लेयर वो जाके कह देता ये करो। अगर इनमें इतनी दम है, इनको चाहिए था कि एसोसिएशन में, बीसीसीआई तो बड़ी बात है, अपने एसोसिएशन के सेक्रेटरी को कहना कि भैया मुझे तो मेरी नौकरी पर धमकी दे रहे हैं, ये करो वो करो, बताइए मेरी नौकरी बचाइए। मेरा जी नहीं, हितेश पटेल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। हितेश जी, आप ही मतलब आपके एसोसिएशन से तो नहीं जुड़े, लेकिन बीसीसीआई से जुड़े एक चीफ क्यूरेटर कह रहे हैं कि हमको एसोसिएशन की तरफ से धमकी मिलती है, हमको धमकाया जाता है, कोच धमकाते हैं, कप्तान धमकाते हैं, तो उसके बाद जाकर के हम पिच बदल देते हैं। आप ही ने सुना अभी। जी, हरपाल सिंह की बात से मैं सहमत हूँ, इसलिए कि अगर उसका एसोसिएशन उसको जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको मानने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं अगर कोई क्यूरेटर अगर इंडिया का कैप्टन है या कोई नामी प्लेयर है, उसकी बात में आके अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो अपने पर्सनल वो डिसीजन लेता है, अदरवाइज तो एसोसिएशन उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और अगर ऐसे क्रिएटर आज जो बोल रहे हैं तो वो टाइम उन्होंने क्यों अपने एसोसिएशन के थ्रू, क्योंकि भौमिक साहब जो मैं जानता हूं और वहां पर अमिताभ चौधरी है जो हमेशा बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं और वो काफी टाइम से वहां पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो कभी वो बात भी उछल के नहीं आई है। और आपका जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं बीसीसीआई की भी आंख आज खुलेगी कि जिस तरह से इस काम में
अगर कहीं ना कहीं अगर कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई है तो उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट्स फिक्सिंग होता था, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें जितना मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जब जैसे बोलते हैं कि भी आईपीएल, तो आईपीएल का बैटिंग विकेट ही होता है, वो कोई स्पिन ट्रैक नहीं होता है, और उसमें हमेशा 150 से ज़्यादा रन बनते ही है। तो ये एक कॉमन आदमी को भी जानता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो बात उभर के आई है आपकी इस चैनल के द्वारा, तो आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि बीसीसीआई इसको गंभीरता से देखेगी और आपका फुटेज मंगा के उन लोगों के सामने अगर कोई कार्रवाई हो सकती है या तो उनको कोई नोटिस मिल सकती है कि नहीं, और हर एक एसोसिएशन को एक नई गाइडलाइन इससे मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो खत लिख रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिफारिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के सबसे बुजुर्ग और सबसे प्रसिद्ध क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी की। प्रबीर मुखर्जी 5 से 9 दिसंबर 2012 भारत इंग्लैंड सीरीज से जुड़ा एक और बड़ा विवाद आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। बात विदेशी टीम के खिलाफ अपनी मर्जी की पिच बनवाने से ताल्लुक रखती है। इस विवाद में आमने सामने थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता के चीफ क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी। धोनी पहली गेंद से ही टर्निंग विकेट चाहते थे और प्रबीर मुखर्जी का इससे इनकार था।